Good day everyone. Today we will study class 3rd chapter 5 Chotu's house. Chotu came to Mumbai for the first time. छोटू मुंबई पहली बार आया है. यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से एक स्टोरी बताई गई है. In the first picture you may see that Chotu came to the Mumbai first and he is watching here and there and finding a place to live. Then the rain came and Chotu is outside the home. He did not have a place to live. Finally here Chotu found a pipe where he started to live, and slowly he developed the pipe as his home. Here he has arranged the sleeping area here. Then he has arranged a drum for filling the water. He has tied a rope for the cloths. कपड़े बांधने के लिए उसने एक डोरी लटका दी है रहने के लिए, और बाहर वो खाना भी बना रहा है. तो उसने घर के अलग अलग हिस्से बना लिए हैं. कुछ दिनों बाद एक और लड़का जिसका नाम मोनू है वो भी मुंबई में आया, और वो भी रहने के लिए एक जगह तलाश रहा है. और छोटू ने उसे देखा तो उसने डिसाइड किया मोनू को अपने साथ रखने के लिए, और फाइनली वो दोनों साथ रहने लगे और उन्होंने एक लिविंग एरिया डेवलप कर लिया जहां वो दोनों साथ बैठकर समय व्यतीत करते थे. Now study the pictures carefully and answer the following. पिक्चर्स को ध्यान से देखो और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर दो. What did छोटू think when he looked at the pipe? पाइप को देखने पे छोटू ने क्या सोचा? When Chotu looked at the pipe, he thought that the pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. छोटू ने सोचा कि ये उसके लिए सुरक्षित स्थान होगा रहने के लिए, और इससे वो तेज़ हवाओं से, बारिश से और ठंड से बच जाएगा. हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने पाइप का यूज़ कैसे किया? सो हेयर छोटू यूज्ड द पाइप एज हिज होम. उसने अपने पाइप का यूज़ घर की तरह किया. नेक्स्ट इज, into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? पाइप और इसके सराउंडिंग एरिया को छोटू ने कौन कौन से हिस्से में बांटा? So he divided the pipe as a part for sleeping, a part for cooking, a part for drying clothes, a part for storing water, and a part where guest can sit or guest room. Next is, in which part of this house will Chotu like to spend most of his time? इस घर के कौन से हिस्से में छोटू अपना ज़्यादातर समय बिताना पसंद करेगा? So here Chotu would like to spend most of his time in the part which was meant for guests by sitting with the guests. जो लिविंग एरिया है जहाँ वो अपने गेस्ट्स के साथ बैठ के समय व्यतीत कर सके, उस हिस्से में शायद वो सबसे ज़्यादा रहना पसंद करेगा. What do you think Chotu invited Monu? Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? छोटू ने मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए इनवाइट क्यों किया होगा? छोटू इनवाइटेड द मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ मोनू हैड नो प्लेस टू लिव एंड छोटू नीडेड समवंस कंपनी. एक तो मोनू के पास जगह नहीं थी रहने के लिए, और दूसरा छोटू को भी किसी के साथ की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया होगा.
Now here one activity is for you. Draw a picture of your house in your notebook and color it. आपके घर की एक पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाओ और उसे कलर करो. Next is to write who all live with you in your house. आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है. So here you should write your father, mother, sister lives with you, and if your grandparents or uncle auntie is also living, then you can also mention here your grandfather or grandmother or uncle and auntie here. Chotu divided the pipe into different parts. राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. आप अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखने हैं. सो जनरली एट आवर होम्स वी हैव द ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, bathroom, kitchen, study room, etc. So all that you may write here. How much time in a day you spend in each part of your house? आप अपने घर में हर हिस्से में कितना समय स्पेंड करते हो. So here you may write at the living area generally we spend 2 to 3 hours. In the bedroom we use it 7 to 8 hours. Then bathroom as nearby half an hour. Then kitchen also you spend half an hour, but your mothers spend more time in the kitchens. So that like that you may mention, and this is the things to discuss. That also you have to discuss with your friends. आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करो कि वो किस किस हिस्से में कौन सा कितना समय स्पेंड करते हैं. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम. क्या कोई ऐसा हिस्सा है घर का जहाँ पे आपकी फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर ज़्यादा समय व्यतीत करता हो. यस, you can include here that my mother spends most of her time in the kitchen. मम्मी जो हैं वो अपना ज़्यादातर समय उनका किचन में गुजरता है. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? क्या आपके घर में कोई एक ऐसा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ कोई एक पर्टिकुलर मेंबर या तो जाता ही नहीं है या जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए जाता है. यस, जनरली हमारे घर में फादर्स जो होते हैं वो किचन में काम नहीं करते हैं और वो या तो जाते ही नहीं हैं या बहुत कम समय के लिए जाते हैं. सो हेयर यू कैन मेंशन यस माय फादर नेवर गोज़ टू द किचन और गोज़ फॉर ए शॉर्ट टाइम. You must have seen that some animals also live with us in our houses. आपने ज़रूर देखा होगा हमारे घर में हमारे साथ कुछ एनिमल्स रहते हैं साथ में. Some of these animals live with us because we want them to. कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम चाहकर अपने साथ रखते हैं. जैसे आप एक पेट डॉग या पैरट या कोई बर्ड या कैट या काउस हम पेट बना करके रखते हैं. तो वे हैं हमारे वांटेड, जिनको हम अपनी पसंद से अपने साथ रखते हैं. वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अनइनवाइटेड होते हैं, जैसे कि माइस, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, कॉकरोच. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अनइनवाइटेड होते हैं. Now here a poem is there in which a child is complaining to his mother about the uninvited animals at the home. Home sweet home. घर प्यारा घर. You always tell me mother the house belong only to us. माँ, आप हमेशा मुझे बताती हो कि ये घर जो है वो केवल हमारा है. But how do I believe that mother? लेकिन मैं इस पर कैसे भरोसा करूँ माँ? When I know it belongs to many more. जबकि मैं जानता हूँ कि ये और भी बहुतों का घर है. Look mother, how these mice are all playing catch catch together. देखो माँ, ये सारे जो चूहे हैं वो कैसे कैसे एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ. एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई. और देखो ये मच्छर कैसे हमारे घर में उड़ रहे हैं. एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. हालांकि जो मकड़ियाँ हैं वो शांति से रहती हैं.
एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, और माँ देखो ये लिजार्ड को, आलसी छिपकली को, लिजार्ड्स को। हाउ स्लो इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, ये कितना धीरे धीरे इधर उधर रेंगती है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक आंट्स, और कितनी सारी इन चींटियों को, काली चींटियों को देखो। ऑल मार्चिंग इन ए रो, जो कि सब एक लाइन में मार्च करती हुई चलती हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, और बाहर कोर्टयार्ड में बर्ड्स को देखो, वो सब कैसे शोर मचाती हैं। जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, स्क्वेरल एंड शाउट, वैसे ही जैसे कि मैं और मेरी बहन कभी कभी लड़ते झगड़ते हैं और चिल्लाते हैं। दैट इज़ वाई आई सी डियर मदर, इसीलिए मेरी प्यारी माँ मैं कहता हूँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली अवर्स, ये मत सोचो कि ये घर केवल हमारा है। इट इज़ डियर टू अस, ये हमें प्यारा है। एंड ऑल हु लिव हियर, और उन सभी को भी जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे और कौन कौन रहता है? यहाँ पे रहते हैं बर्ड्स, लिजार्ड्स, मॉस्किटोज, स्पाइडर, आंट्स, माइस, कॉकरोचेस, ये सब यहाँ रहते हैं और ये सब उनका भी घर है और ये घर उनको भी सबको प्यारा है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, जो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं और उनको भी ये घर प्यारा है। दिस वॉज द पोयम विच इज़ टेकन फ्रॉम बच्चा टोली, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी. Now, do you know rats have poor eyesights but have excellent sense of smell, touch and taste. क्या आप जानते हो जो चूहे हैं उनकी आईसाइट जो है वो कम होती है, कमज़ोर होती है, लेकिन उनमें स्मेल का सेंस बहुत बढ़िया होता है और टच का सेंस और टेस्ट का सेंस उनका बहुत ही बढ़िया होता है, एक्सेलेंट होता है. Now here another activity is for you. Draw pictures of any two animals that live in your house uninvited. Write their names below the pictures. दो ऐसे जानवरों के आपके पिक्चर बनाने हैं जो कि अनइनवाइटेड, बिना इनवाइट किए आपके घर में आ जाते हैं, बिना बुलाए और आपके घर में रहते हैं, और साथ ही आपको उनका नाम भी लिखना है. डू यू कीप योर हाउस क्लीन? क्या आप अपने घर को साफ रखते हो? तो येस, वी कीप्स अवर हाउस क्लीन बाय रेगुलर cleaning with broomstick, then regular mopping of floors, then bathroom is also cleaned daily basis, and once a month we clean our whole house with the vacuum cleaner also. So like that we keeps our home clean. Who all help to keep your house clean? Generally mother and father, and sometimes the children also helps to keep the house clean. Where do you go to freshen up in the morning? We goes to toilet for freshen up in the morning. Where do you throw the garbage of your house? We throw the garbage in the garbage bin at the roadside, and from there the people of municipality came to collect the garbage and take the garbage away. Is the area around your house clean? Yes, the area around my house is clean. Do you use the toilet in or around your house? Yes, we use the toilet in our house. Who cleans it? Generally, mother or father cleans it by using the toilet cleaner. How do you how do you help in keeping it clean? आप इसको साफ रखने में कैसे मदद करते हो? So you can help to keep it clean by using it responsibly. You should sit properly by sitting properly on the toilet seat, and also flush it with the water after use. Now here some suggestions are given to use of toilet. Be responsible, जिम्मेदार बने.
लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल। आओ देखें हमें रेस्पॉन्सिबल कैसे बनना है। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। जब भी आप पब्लिक टॉयलेट या घर में या पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको उस पर सही से बैठना है। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़ के बाद हमेशा पानी डालना है। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को हाथों को सबको प्रॉपरली धोना है। वॉश योर हैंड्स थॉरोली, अपने हाथों को अच्छे से धोना है। Here, leave the toilet as clean as you want it for yourself. आपको कहीं भी टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसे उसी तरह छोड़ना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो कि आपको इस्तेमाल के लिए मिले। यानी हम चाहते हैं कि हमें साफ़ सुथरा टॉयलेट मिले, तो हमें भी इस्तेमाल के बाद उसे साफ़ करके ही छोड़ना चाहिए। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो? फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें महसूस कराता है कि जो साफ़ सफाई है वो हर किसी की जिम्मेदारी है और हर किसी का दायित्व है, और इसे हमें हमेशा अपनाना चाहिए। Describe the toilet area in your school. There are the toilets on every floor of our school. Is it clean? Yes, it is properly clean. Who cleans it and how? Generally, the workers clean it by using the toilet cleaners. How do you help in it? You should help to keep it clean by using water and sitting properly and using water after the use. So you should also use the toilets in the school or in the public place very responsibly. Look how beautifully Lata's house is decorated. देखो लता का घर कितना सुंदर से सजाया गया है। Is there any special way in which you decorate your house? क्या कोई ऐसा स्पेशल तरीका है जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं? When and how? कब ऐसा डेकोरेट करते हो और कैसे डेकोरेट करते हो? Yes, we decorate our house in a special way during the festivals, birthday parties, or when some special guests are expected. And we use the different decorative materials, flowers, balloons, rangolis, lights, torans, etc. to decorate the house. Ask your friends and when and how they decorate their houses. तो ये आपको अपने दोस्तों से भी डिस्कस करना है कि वो कब अपने घर को सजाते हैं और कैसे सजाते हैं। Now here the question is to write, name the things with which you decorate your house. उन चीज़ों के नाम लिखने जिनकी सहायता से आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। सो हेयर यू मे इंक्लूड दैट वी डेकोरेट्स आवर हाउस बाय यूजिंग फ्लावर्स, बैलून्स, रंगोलीज, लाइट्स, तोरन्स एंड डिफरेंट डेकोरेटिंग मटेरियल्स। We also decorate the things that we bring from the market, which is locally available materials during the celebration of the festivals. So students, I hope this video will be beneficial for you to understand the lesson Chotu's house. Share the video with your classmates and friends, and also subscribe our YouTube channel. Thanks for watching the video.